गुड मॉर्निंग बच्चों. आई विल स्टार्ट शार्प at 10:35. ठीक है. प्लीज ज्वाइन फास्ट.
Okay, good morning everyone. Can you hear me? Please say hello. एक कोई जन Yes, बोलो. ma'am. Hello. Okay, okay. See, दो numericals रह गए थे, pKa and pKb वाले. So we will do that first and then we will proceed for the solubility वाला part. ठीक है? I hope you all are sitting with logbooks, notebooks and everything. Yes. Okay, write down. Calculate the pH of buffer solution. Calculate the pH of buffer solution containing 0.05 molal, or sorry, 0.05 mole NaAF, sodium fluoride per liter. Calculate the pH of buffer solution containing 0.05 mole NaF per liter and 0.015 mole HF per liter. ठीक है? Now given Ka is equals to 7.2 into 10 raised to minus 4 for HF. This is given to you. ठीक है? What we have to calculate here? pH of the solution. Correct? You can see NF is given and HF is given. It is a buffer solution. Is it right? HF is hydrofluoric acid. So if it is acid, it is your salt. हम लोग को क्या निकालना है? pH. pH is equals to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. ठीक है? Now see ya, salt का concentration कितना है? देखो HF और NaF में से salt कौन होगा, acid कौन होगा? So HF is your acid, correct? इसका concentration कितना है? 0.015 mole and concentration of NaF, it is your salt. So what is the concentration of this salt? It is 0.05 mole. This part is clear? This much is clear? Yes or no? Yes. हाँ. Okay. Now next what we have to do over here is pKa निकालना है. बराबर ना? pKa is not given, but Ka is given. So how will you calculate pKa? pKa is equals to negative log to the base 10 Ka. तो पहले Ka निकालेंगे. We know the value of salt and acid and we will first calculate the value for pKa. ठीक है? देखो हाँ. Negative log to the base 10 7.2 into 10 raised to minus 4. अब मुझे बताओ इसका log सबको आता है कि नहीं आता है? How will you do this? It is, अब ये जो log है ना, ये इसके लिए भी applicable है, इसके लिए भी applicable है. See, when you are applying the log, that time हम लोग क्या करते हैं? 10 raised to minus 4 को side में कर सकते हैं. But this log is applicable for 7.2 also and also applicable for 10 raised to minus 4 also. तो लिखा कैसे जाएगा पता है ये? It is negative log to the base 10 7.2. ठीक है? फिर क्या करेंगे? प्लस मल्टीप्लीकेशन है ना, प्लस वापस से क्या लिखेंगे? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 10 रेस टू माइनस 4. ये समझा? दिस लॉग इज एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो, दिस लॉग इज एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो. अब देखो ध्यान से, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 7.2 लिखा. अभी ये देखो हाँ बच्चों, ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेस टू माइनस 4 कितना हो जाएगा? -4. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Negative log to the base 10 10 raised to minus 4 is -4. ये -4 हो जाएगा और ये माइनस तो प्लस हो गया ना, तो खाली साइन क्या आ जाएगा? +4 का साइन आएगा. ये समझा? ये समझा क्या सबको? हाँ. अभी देखो क्या करेंगे, 4 इधर लिखती हूँ
and negative log to the base 10 7.2. 7.2 का log देखो जल्दी से बताओ कितना है. 0.8573. ओके 0.8573. ये समझा स्टेप कैसे किया. दिस log is applicable for this also and this log is applicable for this also. अभी देखो इसको ऐसे ही रखा, ये प्लस माइनस सपोज माइनस हो जाता. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, log of 10 raised to minus 4 is also minus 4. तो माइनस माइनस प्लस हो गया. बराबर. अब ये प्लस 4 को पहले लिखा, ये माइनस को बाद में लिखा. अभी सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 4.0 एंड क्या है ये इधर 0.8573. तो ये हो गया 3 9. दिस इज ऑल्सो 9 9. ये हो गया 7 2 4 1 3 पॉइंट. बराबर ना. तो अपना पीके कितना आया बच्चों. आर पीके इज 3.1427. अभी मेरा सवाल ये है, आर यू गोइंग टू टेक आउट द एंटी लॉग ऑल्सो. यहाँ पे लॉग था ना, तो आर यू गोइंग टू टेक आउट एंटी लॉग ऑल्सो. No, ma'am, नो. व्हाई. because we didn't apply the law. It was already. Very good. Perfect answer. Very good. When you apply the log, you have to anti-log. This log is already there in the formula, so you are not supposed to anti-log that. So this is only your answer. Now can we calculate pH? pH is equals to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. So what is pKa? 3.1427 plus log to the base 10. Salt का वैल्यू कितना था 0.05 divided by 0.015. इतना समझ आ गया. अभी कैसे सॉल्व करेंगे पता है, पहले डिवीजन करेंगे, लॉग निकालेंगे, बाद में ऐड करेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा अभी 3.1427 प्लस log to the base 10. ठीक है. What I will do now, I will make this as 5 into 10 raised to minus 2 divided by 15 into 10 raised to minus 3. समझा ये. Is it clear this much part? चलो अभी Yes, नेक्स्ट पार्ट. अभी क्या करेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा मतलब 1/3 हो गया. देखो मैं बाद में दिखाऊंगी अच्छे से पेज, डोंट वरी. अभी जस्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के सब सम्स आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है उसमें भी आएंगे. तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस. अभी देखो मेरा जब तक मेरा ना लॉग सॉल्व नहीं हो जाता आई कैन नॉट डू एनीथिंग. सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट डाउन pH is equals to 3.1427 plus log to the base 10. ये क्या हो गया था 1/3 इंटू ये देखो यहाँ पे क्या था 10 raised to minus 3 था ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3. सो +3 में से -2 गया, कितना बचा +1. तो ये जाएगा 10 raised to +1. देन pH is equals to 3.1427 plus log to the base 10 10/3. 10 हो गया ना. अभी क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 3 आएगा. pH is equals to 3.1427 plus log of 3.33. चलो log of 3.33 देखो. pH is equals to 3.1427 plus 0 point कितना है 33 में 3 0.5224. okay 0.5224. now you add this, you will get 3.6651. ये आया आपका pH. समझा. understood this sum how to solve. first of all we will calculate here pKa. so pKa कैसे, do you understand that. एक सेकेंड ना बच्चों, just give me a second.
Hello, can you all hear me? Yes. Okay, okay. ठीक है. Now see what we have done now. We have taken out log to the base 10 7.2 into this. ये समझा step कैसे आ गया? इसका anti log क्यों नहीं लिया? Because this log is there in the formula itself. Then after that you have to first solve this part. Take out the log and then add. Clear this sum? I hope you understood this. चलो लिखो फटाफट से जिन्होंने नहीं लिखा है. एक मिनट में क्लिप लगाती हूँ इधर. Copy down this, those who have not written. फटाफट लिखो बच्चों. इधर तक हो जाएगा तो बोलो, फिर बुक नीचे करती हूँ. मैम नीचे करो. समझ के करो क्योंकि एक और सम देने वाली वैसे ही सेम विच यू हैव टू सॉल्व, और ऐसे सम्स आने वाले एग्जाम में. ठीक है. Done this page. Done. Okay. Next page पे जाऊँ. Okay. अच्छे से करो क्योंकि एक दूसरा सम बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ.
Please solve using logbooks only, yeah, बच्चों, please. Once you're done, please notify. Okay. Chalo, should I give you the next question? Okay, write down the question. Ready, everyone? Ready? Okay. Write down. Calculate pH of buffer solution. Calculate pH of buffer solution composed of 0.1 molar weak base, BOH, composed of 0.1 molar weak base and 0.2 molar of its salt, BA, given Kb is equals to 1.8 into 10 raised to -5 for weak base. चलो मुझे क्या चाहिए? pH. बट यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है देखो, BOH दिया है एंड BA दिया है, तो क्या ये एसिड से रिलेटेड है, pH से रिलेटेड है? नो, इट इज रिलेटेड विथ POH. सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? POH निकालोगे, ठीक है. POH इज इक्वल्स टू pKb plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base. तो अभी pKb नहीं पता, salt कौन सा है इन दोनों में से? which one is salt? BOH is salt or BA. BA? हाँ, correct. This is your salt. Absolutely correct. This is your salt and this is your base. आएगा करने के लिए तो पहले पुराना मेथड, पहले pKb निकालो और pH चाहिए तो कैसे निकालेंगे? 14 माइनस जो भी POH आएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर देने का, यू विल गेट pH. समझा? तो पहले pKb निकालो, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 Ka, फिर ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन पहले ये सॉल्व करना जिसे पहले सिखाया था मैंने, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1. समझा? फिर इसका लॉग ले लो, फिर ऐड करना. चलो सॉल्व करो, आएगा करने के लिए. इट इज मिस एग्जैक्टली, यहाँ पर हाँ, के तो नहीं दिया है ना? के भी दिया है ना बेटा. ये क्या के भी चाहिए? ओ सॉरी सॉरी, दिस इज मिस यहाँ के पर बी. आपने के, हाँ सॉरी दिस इज के बी. करेक्ट करेक्ट. pKb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 Kb, बराबर. तो अभी देखो वैसे ही करना है, माइनस log to the base 10 log 1.8 into 10 raised to -5, जैसे पहले किया था एग्जैक्टली सेम है, खाली एक ही स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दैट 14 माइनस POH करेंगे तो pH आ जाएगा. हाउ मच टाइम यू नीड फॉर दिस? जल्दी बोलो. 10:56 हो रहा है. 11:05 को वी विल डिस्कस, ठीक है. पी के बी का वैल्यू बताना मुझे कितना आता है.
नहीं समझेगा तो पूछो। हाँ, then what is the value for kb, sorry pkb? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले इतना बोलो। हाँ करेक्ट है। करेक्ट है कि नहीं कशिश, बराबर है। अनया is also correct. Correct, everybody got correct answer, very good. चलो अभी सबसे पहले फटाफट पीओएच निकालो, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो।
Okay, some people got the answer for, एक minute है, POH. POH बराबर है किसका? प्रगति का. सृष्टि आपका गलत है. मेघा इज करेक्ट. कशिश इज ऑल्सो करेक्ट. कन्हैया, PH आपका गड़बड़ हो गया, थोड़ा चेक करो. हाँ, ऋषि करेक्ट, बराबर है. लेकिन ऋषि शायद फोन पे कर रहा है क्या? सॉल्व. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अभी गड़बड़ कन्हैया का हो गया जरा. कन्हैया, POH कितना आया वो बताओ. एक मिनट. हाँ, POH कितना है? 5. हाँ, 14 माइनस, बराबर है, बराबर है. कितना आया? 14 माइनस 5. रुको. 14 माइनस 5.0457, ये POH था ना. So this is 3. 9, 9, 9, 3, 4, 5, 9, 8. बराबर है, बराबर है कन्हैया. करेक्ट है, करेक्ट है. सॉरी, it was correct. Everybody got this answer? Chalo, I hope you all are clear with PH, POH, pKa, pKb. Correct? Any doubts? सभी मैंने जितने possible numericals थे सब ले लिए till this part. Till this part. Now we will start with the new topic. Should I start? Ready everyone? Everybody got this answer? Correct, Pragati. Correct answer. I hope everybody got this answer. Okay. Chalo. Now we will go for the next topic. Our next topic is solubility and solubility product, which is called as solubility equilibria. ठीक है? Now, if we'll talk about this solubility, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? ट्रू सॉल्यूशन, completely soluble, correct? Here we are going to talk about sparingly soluble salt. ठीक है? Sparingly soluble salt means the salts which are slightly soluble, not completely soluble in the water. That time it is called as sparingly soluble salt. ठीक है? अब देखो कैसे करते हैं. I will take over here silver chloride. It is in the solid state. When you're going to dissolve it in the water, it will form Ag plus in the aqueous state plus Cl minus also in the aqueous state. But will it dissolve completely? No, because it is sparingly soluble salt. This is called as equilibrium. अब हम लोग क्या करेंगे? We will apply law of mass action. So K is equals to concentration of Ag plus concentration of Cl minus divided by concentration of AgCl. Is it clear? ठीक है. अब क्या था? concentration of this, अभी ये ज्यादा अमाउंट में रह गया ना. AgCl तो dissolved हुआ, dissociate हो गया, but this will also remain undissociated because this is your sparingly soluble salt. तो अब मैं क्या करूंगी? K multiplied by concentration of AgCl, that is equals to
concentration of Ag plus and Cl minus. ठीक है, I will consider this part as, क्या consider करेंगे इसको, I will write on this as KSP. KSP is equals to concentration of Ag plus concentration of Cl minus. So what is this SP stands for? KSP stands for solubility product. ठीक है, it is called as solubility product. So it is very simple. तो इन शॉर्ट कैसे आता है KSP का फॉर्मूला, अगर हम लोगों ने जनरल लिया तो Bx and Ay अगर ऐसा सॉलिड स्टेट में है तो it will give you x into b y raised to plus y into a x raised to minus. तो इन शॉर्ट इसका सॉलिबिलिटी कैसे लिखेंगे, KSP is equals to concentration of b y plus raised to x, जो भी उसका number of moles होगा it will go here, and a x raised to minus raised to y. समझा? So in short solubility product क्या है बोलो मुझे, it is nothing but multiplication of the concentration of the dissociated powers, the substance raised to the appropriate powers. Correct? This is called as solubility product. देखो वापस से बताती हूँ, don't get confused. I will take here sparingly soluble salt AgCl. AgCl will dissociate as Ag plus and Cl minus. Correct? So K is equals to Ag plus Cl minus divided by AgCl. ठीक है? Now this will go and multiplied here. So K into AgCl is equals to Ag plus and Cl minus. This whole term will become constant, which is called as solubility product. ठीक है? So general equation कैसे दिया? X का किधर जाएगा कोएफिशिएंट पे, Y किधर जाएगा कोएफिशिएंट पे, इसका concentration is called as solubility product. देखो और एग्जांपल देती हूँ 3-4, आपको समझ में आ जाएगा. I will take an example of BaSO4 बेरियम सल्फेट. अभी देखो कैसे होगा. It will form Ba2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. इसका KSP कैसे लिखेंगे? KSP is equals to concentration of Ba2 plus and concentration of SO4 2 minus. इतना समझा? एक और बताती हूँ. CaF2 calcium fluoride will form Ca2 plus 2F minus. ठीक है, अब बताओ KSP कैसे आएगा? Concentration of Ca2 plus concentration of F minus raised to 2. समझा? Getting everyone? तो जो भी आयंस उसके बनेंगे उसके पावर को लेके KSP लिखने का. समझा क्या? हेलो. हाँ, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग बताना कि कैसे आएगा उसका. ठीक है? I will take over here bismuth sulfide Bi2S3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2Bi3 plus 3S2 minus. चलो बताओ क्या है, कैसे लिखेंगे इसका KSP? How will you write down this KSP? Concentration of Bi3 plus the whole square. Very good. Concentration of Bi3 plus raised to 2 ना, and हाँ, concentration of S2 minus raised to 3. समझा? चलो एक और. Calcium phosphate Ca3PO4 twice will dissociate to give you 3 calcium and 2 phosphate ion. चलो KSP बताओ. KSP is equals to concentration of Ca2 plus raised to 3 and PO4 3 minus raised to 2. समझा? अभी solubility कैसे लिखते हैं? Solubility product for sparingly soluble salt. ओके, चलो अभी पहले कॉपी करो, हेडिंग लिखो, राइट ऑन द हेडिंग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया. फिर मैं आपको ना इसका डेफिनेशन दे देती हूँ और उसके बाद एग्जांपल्स लिखो. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे देती हूँ, देन यू राइट डाउन ऑल दीज एग्जांपल. फिर मैं आपको सिखाती हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
ठीक है, पहले इतना हेडिंग लिख के मुझे बोलो, आई विल गिव यू डेफिनेशन। ओके, लिखो। इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, इन दी, ये डेफिनेशन किसका है बच्चों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। किसका डेफिनेशन है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे रही हूँ, केएसपी। इन दी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ sparingly soluble salt, in the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentrations, the product of equilibrium concentrations of constituent ions of constituent ions raised, R-A-I-S-E-D, raised to the power, raised to the power equal to their, raised to the power equal to their respective coefficients, respective coefficients in the balanced equilibrium expression, in the balanced equilibrium expression at given temperature, at given temperature is called as solubility product, is called as solubility product. देखो क्या बोला है, it is the product of equilibrium concentration of the constituents raised to the powers, और वो powers क्या रहते हैं? which are used to balance the equation ना, ये देखो x और y ये क्यों यूज हुआ? to balance the equation, so that is called as solubility product। समझा? अभी सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट वाला AgCl का, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, और उसके बाद दिस इज एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, और वो पेज पे 2 है, पहले इतना लिखो। ओके, समझा सबको? एनी क्वेश्चन इन दिस? हाँ, सॉलिबिलिटी कैसे निकालेंगे? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जो भी आयंस रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, और जो भी आप बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हो वो उसके हमेशा पावर पे चला जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो पहले, यहाँ तक लिखो, फिर मैं नीचे करती हूँ बुक, हो जाएगा तो बोलो। प्लीज लेट मी नो वंस यू आर डन। हाँ, मैं नीचे करती हूँ बुक।
ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड। चलो अभी नीचे वाला पार्ट लिखो। बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड वाला दिख रहा है ठीक से? मैम थोड़ा इसके ऊपर ऊपर करो ना। ओके ओके, एक मिनट है, ये पेज एक सेकंड। डन। आराम से समझ के करो, कोई गाई नहीं है। On this also you have lots of numericals. Okay, ठीक है। Now next topic you have to study is relationship between solubility and solubility product. ठीक है, just pay attention. I will इसे give you लिखने का है? time to, नहीं अभी नहीं, बाद में जब भी बोलूंगी तभी। Relationship between solubility and solubility product, ठीक है। Now solubility, S represents solubility, capital S, and KSP will represent solubility product, correct? Now what they've said, solubility क्या रहता है? Solubility of the compound is the amount in gram, ठीक है, कोई भी substance in gram which is dissolved in per liter volume of solution, correct ना? 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी कैसे चेक की जाती है? कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लेके उसको 1 लीटर में डिजोल्व करने का, ठीक है। सो विच इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी। इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज सॉलिबिलिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ ग्राम दैट इज डिजोल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो सकता है? 100 ml भी हो सकता है, 1000 ml भी हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट आई सेड, it is the amount in gram that dissolved in per unit volume of solution, clear? अब इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म है which is called as molar solubility, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है इसका, हाँ, मोलार solubility, ये भी इसके ऊपर भी सम आएंगे, इज इक्वल टू solubility in grams per liter डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, मोलार बोला है तो मोलार मास, समझा? दैट इज कॉल्ड एज मोलार मास। इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? अगर आपने कुछ ग्राम्स लिया उसको एक यूनिट वॉल्यूम में डाल दिया, 100 ml में या 1000 ml में, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। एंड व्हाट इज मोलार सॉल्युबिलिटी? इट इज एक्चुअली सॉल्युबिलिटी बट इट विल बी डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। इतना क्लियर हुआ सबको? नाउ there is an equation which is representing solubility। देखो अभी वापस से मैं सेम इक्वेशन लेती हूँ। bx ay will give you x b y plus y a x minus, ठीक है। तो इसका KSP कैसे लिखेंगे? KSP is equals to by plus raised to x and ax minus raised to y। अभी मुझे क्या निकालना है इसका? रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी। देखो क्या रिलेशन है, KSP इज इक्वल्स टू x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y।
ये है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। खाली आपको इक्वेशन याद रखना है, वो कैसे आया उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, KSP is equals to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y। यहाँ तक सबको समझा क्या? पहले इतना बोलो। What is solubility? It is the amount in gram dissolved in per unit volume of solution. What is molar solubility? Solubility in gram divided by its molar mass. Correct? What is the relationship between S and KSP? KSP is equals to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y। यहाँ तक सबको समझा? पहले इतना बोलो। Is it clear? Clear बच्चों? Say yes or no please. Okay. ओके ठीक है। अभी देखो कैसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी। हर सोल्यूशन का अलग रहेगा, सबका ये केस भी सेम नहीं आएगा। देखो मैं बताती हूँ। अभी सपोज एग्जांपल लिया AgBr, ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस एंड Br माइनस में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब x is equals to 1, y is equals to 1। Is it clear? How many moles of Ag has been formed? Only 1 mole. Br कितना है? 1 mole। X is equals to 1, Y is equals to 1। अभी KSP निकालो। KSP is equals to 1 raised to 1, 1 raised to 1, S raised to 1 plus 1। तो KSP क्या आएगा? That is equals to S square। पहला पार्ट समझा? फर्स्ट पार्ट क्लियर? ओके हाँ। अभी देखो मैं अभी सोल्यूशन चेंज करती हूँ। स्पैरिंगली सॉल्युबल अभी सोल्यूशन जो है वी विल चेंज दैट। सिंपल काफी सिर्फ 1 मिनट। ओ सॉरी मेरा स्टैंड ही गिर गया, 1 मिनट। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी जो आपने पहले लिया था ना एग्जांपल, वही ले लेती हूँ। कैल्शियम फ्लोराइड वाला ले लेती हूँ। CaF2 will dissociate as Ca2 plus and 2F minus। यहाँ पे देखो x कितना है? 1, बट y कितना है? 2। so KSP is equals to 1 raised to 1, 2 raised to 2, s raised to 1 plus 2। तो KSP कितना आएगा? 2 to the 4 s cube। आ रही है बात समझ में? मतलब सभी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी सेम नहीं रहता है। It depends upon amount present. It depends upon what is the this coefficient। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। It will dissociate as Al3 plus and 3OH minus। बताओ कैसे लिखूं? X is equals to कितना है? 1 1। Y equal to कितना है? 3 वेरी गुड। तो केस में क्या हो जाएगा? 1 raised to 1, 3 raised to 3, s raised to 1 plus 3। मतलब KSP is equals to 27 कितना हो S जाएगा? raised to 4। हाँ यस, s raised to 4। आया समझ में? इक्वेशन के ऊपर ये इक्वेशन आता है, ये आता है आंसर। अभी दो तुम लोग सॉल्व करना। हाँ कौन सा दे दूं? कैल्शियम फॉस्फेट वाला देती हूँ, जो पहले किया था ना वही वाला करो। इट विल डिसोशिएट एज 3 Ca2 plus 2 PO4 3 माइनस। इसमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन निकालना। दूसरा है PbI2 will give you Pb2 plus 2I माइनस। तीसरा निकालो AgCl का, दैट इज Ag प्लस। रुको मैं टाइम देती हूँ आपको, अभी लिखना नहीं, मैं बताती हूँ कब लिखने का। रुको 1 सेकंड रुको। और एक कौन सा एग्जांपल था? हाँ इसका भी निकालो। Bi2S3 2 Bi3 प्लस 3S2 माइनस। ये सबका आपको क्या निकालने का? ऐसा KSP वाला एंड S वाला रिलेशन निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया रहेगा तो पूछ लो। Should I dictate? Yes.
हाँ Yes, ma'am. ओके लिखो रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। वहां पे लिख दो कैपिटल S इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी एंड KSP इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इतना लिखो पहले, ये 3 लाइन, 1 2 3। डन। Yes, ma'am. Okay. Now the definition of solubility. It is the amount in gram. It is the amount in gram dissolved per unit volume of solution. Dissolved in per unit volume of solution. Dissolved in per unit volume of solution. Next heading, molar solubility. Molar solubility. बोलो। Yes. Yes, ma'am. The number of moles of a compound, the number of moles of a compound that dissolve to give that dissolve to give 1 liter of 1 liter of saturated solution. 1 liter of saturated solution is called its molar solubility. Is called its molar solubility. अब पहले ये फॉर्मूला लिखो, molar solubility is equals to solubility in grams per liter divided by molar mass. ये सब आपके नोट्स ही हैं बच्चों। हो जाएगा तो बोलो एंड देन स्टार्ट राइटिंग दिस होल पार्ट। नीचे वाला सब लिखो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्स और वाई कैसे लेते हैं। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी योर एक्स एंड वाई। हो जाएगा तो बोलो आई विल टर्न द पेज। दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है ना? ओके डन। हो जाएगा तो डन लिखो बच्चों चैट बॉक्स में, ताकि मैं पेज टर्न करूं। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है अच्छे से।
ओके ठीक है। I will now turn my page. अभी ये आप लोगों को सॉल्व करने का है, ठीक है? दिख रहा है पूरा? जितना दिख रहा है उतना सॉल्व करो पहले। कैन यू सी बच्चों? Yes, ma'am. करो, सॉल्व करो। कुछ नहीं समझेगा तो पूछो, हाँ, बिंदास एकदम। Ma'am, can you shift the camera a little up? Please solve all those lower one also. इसके बाद एक छोटा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। और क्या सिखाऊं? अरे वाह, थोड़ा ही बचा है अपना। कल मॉर्निंग, इवनिंग और संडे, तब तक हो जाए, संडे के पहले ही हो जाएगा अपना चैप्टर। So your 3 chapters will be done, paper 1 के। Solid state सर ने लिया, then solution and ionic equilibrium. Organic में कितने chapters हुए बच्चों? How many chapters are done in organic? HDA हो गया। Done. This part is done. सबका KST और ये निकालो। Okay. I hope you all understood what is solubility product. Okay. HDA अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये चैप्टर के बाद है ना थर्मोडायनेमिक्स ले लेती हूँ, तो पेपर 1 के ना मैक्सिमम 4 चैप्टर हो ही जाएंगे, एंड देन वी विल गो फॉर पेपर 2। अच्छा ठीक है, 16, 17, 18 भी हो गया। ओके
ठीक है, चलेगा। चलो, दिस इज डन बच्चों। शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? I hope you all have understood this. Just give me a quick yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? Solubility equilibrium में what is KSP, solubility product and what is solubility? ठीक है? Let me see your responses. Okay. चलो, ठीक है. Thank you. Now we will go for next part. Very simple it is also. Condition of precipitation. PPT. अच्छा छोड़ो, मैं पूरा ही लिखती हूँ. Precipitation. पहले बताओ what is precipitation? What is precipitation? कोई बता सकता है? आपको क्या लगता है? What do you mean by precipitation? White solution which does not get dissolved in any liquid or any solution. Very good. Correct. बिल्कुल सही है. Precipitation means when you can see the salt in your solution. और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? When two things are mixing, it will not give you a soluble thing. It will give you a PPT. ठीक है? That is called as precipitation. जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल में लेती हूँ मिल्क. मिल्क के अंदर अगर आपने सिट्रिक एसिड डाला, सिट्रिक एसिड मतलब नींबू, मिल्क का प्रेसिपिटेशन हो जाता है. अभी मीनिंग समझा? प्रेसिपिटेशन मतलब व्हेन टू थिंग्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डिसॉल्व ही हो. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक नया कंपाउंड भी मिल जाता है व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. ठीक है? अब ये प्रेसिपिटेशन के कुछ कंडीशंस हैं which we are going to relate with ionic product. ठीक है? And solubility product. We are going to relate them. Ionic product को IP लिखते हैं, solubility product को KSP लिखते हैं. अब आप पूछोगे मिस ionic product क्या है? So what is ionic product? It is same as KSP only. ठीक है? It is same as KSP only. Ionic product is same as KSP. ये जो है ना, ये बच्चों, this is under any condition. It is concentration under any condition. And what is KSP? It is concentration at equilibrium. बस दोनों के बीच में इतना ही फर्क है. आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हो कोई भी कंडीशन में, बट केएसपी आप क्या देख रहे हो? यू आर ऑब्जर्विंग कॉन्सेंट्रेशन ओनली एट इक्विलिब्रियम. हाँ, यस यस, करेक्ट यश. जो नीचे एक्यूमुलेट होके पीपीटी आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. ये समझा आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी का डिफरेंस समझा? दे बोथ आर सेम, बट आयनिक प्रोडक्ट इज concentration any condition and here it is concentration only at the equilibrium. इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? बोलो पहले. Ionic product and KSP. Ionic product is defined as same as KSP, but only the difference is it is the concentration at any condition. कुछ भी रहने दो, और ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व होता है. ओके, अब देखो कंडीशन क्या है. कंडीशन नंबर 1, when ionic product is equal to KSP, मतलब सॉल्व करके, ठीक है, when ionic product is equal to KSP, solution is called as saturated solution and solubility equilibrium exists. मतलब कुछ नहीं होगा ना, डिसॉल्व होगा ना कुछ होगा, बस इक्विलिब्रियम हो गया when two are same. Condition number 2, when ionic product is greater than KSP, solution is called as super saturated solution. ठीक है? solution is called as super saturated solution. अब super saturated है मतलब ज्यादा solid present है ना, तो क्या होगा यहाँ पर? precipitation occurs. समझा? Third condition, when ionic product is lesser than KSP, solution is called as
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो सुपर सैचुरेटेड मतलब हम लोगों ने किया था ना, सॉलिड विल बी मोर, सॉल्वेंट विल बी लेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी तो दिखेगा। इस केस में अनसैचुरेटेड आ गया तो विल यू सी द पीपीटी? प्रेसिपिटेशन डज नॉट ऑकर। समझा? अभी न्यूमेरिकल में आपको कैसे दे देंगे, दे विल गिव यू द वैल्यू फॉर आईपी और आपको केएसपी सॉल्व करने के लिए बोलेंगे एंड दे विल आस्क यू कमेंट whether the precipitation takes place or not। तो पहले आप केएसपी सॉल्व करो, उसके बाद दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों इक्वल हो गया तो आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम है। अगर आईपी का वैल्यू केएसपी से कम दिख रहा है तो you will comment it is super saturated, means precipitation will take place, and if IP is smaller than KSP means that is unsaturated solution and precipitation will not take place। clear this much part बच्चों? any question in this please पूछो मुझे, लिखो नहीं, पहले मैं बोलती हूँ, पहले उसके बाद लिखना। इतना समझा कि नहीं पहले ये बोलो। Yes, ma'am. ओके अभी लिखो हेडिंग कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसके नीचे लिखो डेफिनेशन आयोनिक प्रोडक्ट आईपी। डेफिनेशन आयोनिक प्रोडक्ट आईपी, उसका डेफिनेशन लिखो पहले। it is defined in the same way it is defined in the same way as solubility product KSP। it is point number 1 था ये, it is defined in the same way as solubility product KSP। Ma'am, number what 2 was the main heading? What was the main heading? Conditions of condition of precipitation। मेन हेडिंग वाज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसमें आप लिख रहे हो अभी आयनिक प्रोडक्ट के बारे में, तो इट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2, the only difference is that the ionic product concentration contains concentration of ions under any conditions, underline करो, concentration of ions under any condition, whereas KSP contains only, क्या आएगा? whereas KSP contains only which concentration? बोलो। concentration at equilibrium। हाँ करेक्ट, whereas KSP contains only equilibrium concentrations। अब उसके बाद ये तीनों कंडीशन कॉपी करो और ये एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे तुम लोगों को 110%। JEE नीट 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। they will give you the value for IP and they will ask you to calculate KSP and then they will ask you to comment whether the precipitation takes place or not। समझा? तो ऐसे काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लिख लो बच्चों इतना।
मैं म्यूट करती हूँ खुद को, हो जाएगा तो बोलो, ठीक है। Okay. Only the thing I said, Srishti, that IP is same as KSP, but what is IP? It is concentration or at any condition. And KSP क्या होता है? Concentration only at equilibrium. So what is the condition? If you are getting both the values equal, suppose ये भी 2.5 into 10 raised to minus 5 है, ये भी 2.5 into 10 raised to minus 5 है, तो आप क्या बोलोगे? Solution saturated है और equilibrium आ गया, ठीक है? But if the value of IP is greater than KSP, my solution is super saturated. मतलब क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा पीपीटी आएगा, तो precipitation will take place, ठीक है? And if IP is smaller than KSP, means my solution is unsaturated and precipitation does not take place. समझा? तो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं? They may give you the value for IP and they will ask you to calculate KSP. कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे KSP निकालो, चलो, ठीक है? After calculating that KSP, you have to compare these two values and accordingly you have to comment. अभी समझा श्रुति? Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। आराम से लिख लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं भी नेक्स्ट टाइम लूंगी, आज नहीं। मैं तुम लोग को भी नया टॉपिक सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं? एक सम ले लूं क्या इसके ऊपर? अभी नया टॉपिक नहीं सिखाती। हाँ ठीक है, चलो एक सम ले लेंगे इसके ऊपर, तुम लोग बोलते हैं इसके लिए। इजी वाला लेती हूँ। इजी वाला कहाँ है? इजी वाला तो एक भी नहीं है, कह रही तुमने दे देना मुझे। अच्छा, एक सम रह गया था टेक्स्ट के पीछे वाला, वो ले लेती हूँ, 5 मिनट में ही हो जाएगा तुम लोग का। इसके ऊपर नहीं है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं है, वो मैं बाद में लेती हूँ। एक सम रह गया था टेक्स्ट के पीछे का, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला है। हाँ, ये टेक्स्ट के पीछे का है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला। तुम लोग अभी सॉल्व कर दो फटाफट। बोलूं क्या? फिर कल करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट खत्म कर देंगे और फिर न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है? चलो लिखो। इन NaOH solution, in NaOH solution, concentration of OH minus is 2.87 into 10 raised to minus 4। बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन, ये टेक्स्ट के पीछे का था। कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन, पहले बताओ कैसे करेंगे, स्टेप बताओ। pH का फॉर्मूला क्या है? pH is 0.3. नेगेटिव, हाँ, पहले POH निकालेंगे। परफेक्ट। pH नहीं निकाल सकते डायरेक्ट ना, क्योंकि OH है, तो पहले आप POH निकालो। नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, अभी मैंने कल सिखाया है कैसे करते हैं इसको, ठीक है? और ये पता है ना, ये लॉग इसको भी जाएगा और ये लॉग इसको भी जाएगा। अभी किया ना के PK वाला सेम, और उसके बाद 14 में से सब्ट्रैक्ट करो। करेंगे बच्चों? 9 मिनट्स है, तब तक हो जाएगा। विल यू बी एबल टू डू दिस? पहले इतना बोलो, आता है? समझा कि नहीं समझा Yes. क्या करने का? हाँ, POH निकालो, फिर तो मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। चलो, log to the base 10 2.87 to 10 raised to minus 4। तो कैसे करने का? ये log इसको भी अप्लाई होगा, ये log इसको भी अप्लाई होगा। जैसे PK वाला किया था वैसे ही करना है। आपको मिलेगा POH और उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करो, you will get pH। ये टेक्स्ट के पीछे का क्वेश्चन है, ये कर लो सॉल्व। नहीं समझेगा तो पूछो। फिर कल हम लोग करेंगे और कॉमन आयन इफेक्ट बचा है अपना, एक लास्ट टॉपिक है, उतना ही बचा है।
बाकी सब हो गया और न्यूमेरिकल्स ले लेंगे तो मॉर्निंग इवनिंग न्यूमेरिकल्स ले लूंगी, हो जाएगा, कल ही हो जाएगा चैप्टर फिर तो अपना, परसों तक रुकने की जरूरत नहीं है अगर तुम लोगों ने फास्ट फास्ट न्यूमेरिकल्स किया तो। मैं तो परसों एक लेक्चर और ले लूंगी। करेक्ट है कशिश, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। बराबर है सृष्टि, परफेक्ट। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं, गुड। पीएच भी बराबर है, परफेक्ट आंसर आया। देखो ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितना इजी है, लॉग आना चाहिए बस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग आंसर, नहीं समझेगा तो प्लीज पूछो। एंड व्हेन एवरीथिंग विल स्टार्ट आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स, हाँ किधर लिखा है ये, और नहीं लिखा रहेगा ना बुक में प्रॉपर्ली, सेपरेट केमिस्ट्री का बुक देखो तुम लोग गए फिर। मेक अ सेपरेट नोटबुक, पेपर 1 का सेपरेट, पेपर 2 का सेपरेट, ऐसे फिजिक्स में पेपर 1 सेपरेट, पेपर 2 सेपरेट, तो पूरा गड़बड़ नहीं होएगा तुम लोगों से, तो मुझे लगता है। यस यस प्लीज लीव कोशिश, नो प्रॉब्लम। करेक्ट प्रगति, बराबर आंसर है। बीपीएच कैलकुलेट करो। चलो बाकी के लोग क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं आंसर्स, बाकी के लोगों का है नहीं क्या फोन, खड़ा हुआ फोन है, आंसर करो फटाफट बच्चों। सही है सृष्टि, बराबर है, करेक्ट। आई होप आज का लेक्चर सबको अच्छे से समझ में आया, आप लोग को बोर नहीं हो इसके लिए मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेती हूँ, थोड़ा सा थ्योरी लेती हूँ। एनी डाउट्स, आई एम नॉट स्टार्टिंग नाउ न्यू टॉपिक, खाली हेडिंग लिख के रखो, कॉमन आयन इफेक्ट कल करेंगे ये, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर बच्चों, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, मिस इसका कैसा लास्ट का टॉपिक। आंसर क्या है मिस? इसका
लास्ट का आंसर है बेटा 10.45। पीओएच का वैल्यू बताना पहले। पीओएच आएगा, पीओएच लिखती हूँ, रुको, कितना था पीओएच? 3.5421। ओके, ठीक है सृष्टि, थैंक यू। मैं फिर इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करो। आया यश ये आंसर? हाँ इधर मिस, किधर वो गड़बड़ वो इसका, हाँ मिस आ गया वो। हाँ, तो अभी इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करो। बहुत से लोगों को ये सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता। पॉइंट के नीचे पॉइंट जाना चाहिए, याद रखो, ठीक है? होता है गड़बड़, बट मैं सबको बता रही हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट जाना चाहिए। एक बार एक क्लास में बोला 100 माइनस नहीं 100 प्लस 0.25 करो, तो ऐसे लिखा 100 और 0.25 ऐसा लिखते हैं। क्या बोलने का अभी? बहुत गालियां सुनी मेरी। आया आंसर यश? 10.45 आएगा, देखो चेक करो। हाँ मिस आया। गुड, चलो। Any doubts? I hope it is very clear. Please keep on studying. Tomorrow we will meet same time 10:30. ठीक है? और कल कॉमन एंड इफेक्ट सिखा के न्यूमेरिकल मॉर्निंग इवनिंग में ले लेते हो, तो शायद कल ही हो जाए ये चैप्टर। अभी कुछ बचा नहीं है ज्यादा, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय। बाय 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 जोशुआ। चलो मैं एंड फॉर ऑल करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय सृष्टि।